Hello friends, welcome to Pro Talent, and I'm sure all of you must be putting a lot of efforts for your CAT. Or here we are bringing this 8th session on your verbal ability. Okay, so this is primarily for IIM CAT and various other MBA entrance exam. यहाँ पे हम focus करते हैं vocab के ऊपर, and now in coming few days we'll be coming up with the other areas of your language. Let me start to talk about the first part, which is called synonym antonym matrix. क्या दिया है? दो वर्ड्स. क्या दिया है? कॉन्साइज और दूसरा है वर्डी. वर्डी का मतलब होता है जो लंबा चौड़ा ज्यादा शब्द यूज कर कर थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट के साथ यूज करता है, दैट इज कॉल्ड वर्डी. ओके, जहां पे मोर वर्ड्स आर यूज देन नीडेड. ओके, वेल कॉन्साइज, साइज, CISE, साइज इज टू कट. ओके, कॉन्साइज कुछ चीजें कम करके रखी है, दैट इज कॉल्ड कॉन्साइज. ओके, लेट मी एक्सप्लेन द वर्ड्स रिलेटेड टू वर्डी फर्स्ट. वर्बोज, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वर्बोज? वर्बोज का मतलब हो गया समवन हु इज यूजिंग मोर वर्ड्स टू एक्सप्लेन वन सिंपल थिंग. सो बहुत बार एकेडमिक लैंग्वेज, ठीक है, इज मोर ऑफ वर्बोज. यस, बिकॉज दे एक्सप्लेन सिंपल थिंग इन मैनी वेज. Voluble is someone who is characterized by fluency and readiness of utterance, and more importantly loudness of their voice. So कोई चीज लाउडी हो गई, so that is called voluble. Then discursive. Discursive का मतलब हो गया someone is fluent but it is expansive, so he is using too much of detail to explain a simple thing, that's called discursive. So fluent and expansive बोलते हैं उसको. Prolix होना, someone is using too many words and thereby it becomes too much of lengthy, and this is primarily because of fluency in the entire idea. Okay, and then long-winded is a tedious in length. Okay, while if I see the opposite of all this becomes compact, which is concise in expression, ठीक है, which is a compact summary of the play. concise हो गया. succinct है ना, परफेक्ट वे में, ब्रीफ वे में, क्लियर वे में कोई चीज को एक्सप्रेस करी है, छोटी चीज संक्षिप्त में देके रखी है, so that is basically called, which is in a written and oral way. laconic is a person who is using too less words, very few words, but that is precise, है ना, it is too precise, at the same time it is witty. ओके, यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? विटी भी होगा. टर्स होगा, टर्स होता है जो कम शब्द में यूज करता है. टर्स स्टेटमेंट है, सो विच इज एन एब्रप्ट स्टेटमेंट बट इट ट्राइज एंड गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन. while pithy is a very center point. Okay, so pith is a center point, so therefore pithy sentence hona, that is a terse, and it is vigorously expressive but it is small, it is less in content. Okay, so this is how the word is: pithy, terse, laconic, succinct, compact. laconic is a person, तो उसके साथ वर्ड बनते हैं reticent, taciturn, ये तरीके के वर्ड बनते हैं. and I'm sure you are aware about this. reticent, someone who is reserved in speech. taciturn is the person who is trying to explain a simple thing in a tacit manner, that's an implied manner. Okay, chali, great. So these are the word called concise and wordy. Okay, अब ये आपको जरूरत पड़ेगी discursive, prolix, है ना, long winded, ये सब वर्ड आपको आरसी में भरपूर जरूरत पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे उन्होंने बोला होगा कि स्टाइल ऑफ ऑथर कैसा है, तो वहां पे आपको पक्का जरूरत पड़ने वाला है. लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 2. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 2 इज अबाउट कंफ्यूजिबल्स. एक एक करके देखते हैं डिटेल में क्या होता है. So we start with the first question. It says, it was insidious or invidious propaganda of capitalist West that brought communism down. Okay, so what is insidious? Insidious का मतलब होता है proceeding in a gradual manner. Okay, proceeding in a gradual manner. While invidious का मतलब होता है arousing anger
ठीक है, किसी को इंसाइट करना, ठीक है, किसी को इंसाइट करना, किसी को अराउज करना, प्राइमरली एंगर के लिए. सो इट वॉज इंसीडियस ग्रेजुअल प्रोपोगंडा ऑफ कैपिटलिस्ट वेस्ट दैट ब्रॉट कम्युनिज्म डाउन. सही बात है, इंविडियस हो नहीं सकता. सो दिस इज ए. ठीक है, ये बहुत मजेदार है. सेकेंड वाला, द डेजर्ट कैमल शोज ग्रेटेस्ट टॉलरेशन या टॉलरेंस टू डिहाइड्रेशन. आई एम श्योर एवरीवन नोज दिस. इट इज टॉलरेंस. ओके, क्या होना चाहिए? टॉलरेंस. टॉलरेशन, टॉलरेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक हैबिट ऑफ टॉलरेटिंग समथिंग. ठीक है, टॉलरेशन लिमिट होती है. ठीक है, एक लेट्स से गवर्नेंस की एक टॉलरेशन लिमिट होती है. वो इतना कुछ जो लोग लूपहोल ढूंढते हैं उतना उनको टॉलरेशन चलता है. ठीक है, सो यहाँ पे होना चाहिए टॉलरेंस. ओके, सो ए, फिर आया दूसरे में बी. ए के बाद बी, ए के बाद बी, दो ऑप्शन है. अगला देख लेते हैं. ओके, he became increasingly querulous or quarrelsome about trivial inconveniences in the old age home. So he became increasingly querulous. Querulous का क्या मतलब होता है? Querulous का मतलब होता है someone who is, you can say, criticizing, है ना, complaining attitude करना. Quarrelsome, झगड़ालू हो जाना. Quarrelsome आदमी और querulous attitude. So ये होना चाहिए querulous. So ABA परफेक्टली बैठ रहा है. ठीक है, quarrelsome नहीं होगा. He became increasingly querulous. Okay, quarrelsome is झगड़ालू, querulous is a complaining. You are trying to purposefully or purposely irritate me on the thing or the other. So purposefully का मतलब होता है with a determination, purposely with an objective. Okay, so आप पर्पसफुली अपने कैट की तैयारी कर रहे हो और आप पर्पसली अपने दोस्त को परेशान कर रहे हो. सो आंसर होना चाहिए पर्पसली. सही बात है, ग्रेट. द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट एग्रेवेटेड और एक्सेस्परेटेड द यूनियन लीडर्स हु रिफ्यूज टू नेगोशिएट. एक्सेस्परेट करना दैट मीन्स एनॉय करना. ठीक है, एग्रेवेट करना गुस्सा दिलाना. एग्रेवेट करना कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना. सो आंसर होना चाहिए एनॉय. ठीक है, सो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. कंफर्टेबल है? चलो ग्रेट. सो दिस इज एन इजी वन. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज मल्टीपल यूसेज. ठीक है, अब ये मल्टीपल यूसेज में हम क्या बात करेंगे? विल बी टॉकिंग अबाउट इनकरेक्ट यूसेज ऑफ अ गिवन वर्ड. ओके, फटाफट देख लेते हैं इनकरेक्ट यूसेज कहाँ कहाँ पे लगेगा. सो यू हैव अ फर्स्ट वर्ड कॉल्ड डीम. The author has damned the ultra-right party in her book. To give someone a damn, that means to criticize, you can say, to give someone a damn, that means to criticize severely. So he has damned, he has criticized it. So this is criticize है, सही बात है. The teacher did not deign it necessary to answer students' question. To deign का मतलब है to feel it is below the dignity. बिलो द डिग्निटी. अब ये बिलो द डिग्निटी यहाँ पे लग नहीं सकता बिकॉज टीचर डजंट फील बिलो डिग्निटी टू आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन. तो ये सही बैठेगा नहीं. तो यही आंसर हो सकता है. सही बात है. थर्ड देखते हैं. मिनिस्टर डिड नॉट वांट टू डिग्निफाई the frivolous accusation by responding to it. So you respond on a frivolous accusation, you try to dignify it. ठीक है, so this is obviously a kind of, you can say, not the answer because ये सही है. ठीक है, we deem it appropriate to highlight the legal improprieties in this case. We deem it appropriate, हमें लगता है कि वो सही है. So ये भी सही है. So if she deigns to reply my letter, if she feels it is below her dignity, then I will be extremely surprised. सही बात है. ठीक है, सो यहाँ से हमने एक नया वर्ड देखा दैट इज कॉल्ड DEIGN, डेन. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा उसका? सेकेंड. ओके, चलिए ग्रेट. नंबर सेकेंड देखते हैं. बहुत ईजी है. ग्रॉस. ठीक है भाई, ग्रॉस क्या है? देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर सच अ ग्रॉस बिहेवियर. ओके, नाउ ग्रॉस जनरली मीन्स वेरी रूड. Okay, so gross means rude. Okay, and then when we say there is no excuse for such a gross behavior, नहीं, such gross behavior, so A आएगा नहीं. मतलब ये पक्का inappropriate है. ठीक है, आगे देखते हैं. There is grossly distorted account of what actually happened. Grossly distorted चल सकता है. ठीक है, मतलब काफी ज्यादा पूरा खराब किया हुआ. Company grossed, that means company crossed. ठीक है, सो ये भी सही है. इट वॉज अ ग्रॉस
एंड स्लैप एंड टिकल वर्जन ऑफ टेमिंग द श्रीव, ये भी हो सकता है. इट वॉज अ ग्रॉस, काफी खराब था. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम. ग्रॉसिंग मूवी मतलब उसने क्या किया, सब कुछ कैसे रूल सरपास कर दिए. सो आंसर क्या हो जाना चाहिए उसका, फर्स्ट. ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट. ओके, चलिए ग्रेट. सो दिस लुक्स pretty comfortable and let's move towards exercise number 4. Exercise number 4 is about sentence completion और ये sentence completion में मजेदार सी चीज आती है. पहला ऑप्शन देखते हैं. ठीक है, Darwin's method did not really blank the idea of race as an important conceptual category. ठीक है, सो होना क्या चाहिए, Darwin's method did not really require the idea of this. हो सकता है exclude के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा. Even the much more central idea of species was little more than a theoretical blank. Okay, so basically इन्होंने बोला कि भैया ये जो डार्विन की मेथड है उसने ये एक्सक्लूड नहीं किया है. ठीक है, even much central idea of this is more than theoretically fact. तो ये बराबर बैठ नहीं रहा है. क्यों बैठ नहीं रहा है, क्योंकि आप उस चीज को एक्सक्लूड नहीं करते हो. ठीक है, आप ये बोल रहे हो डार्विन की मेथड डिड नॉट रिक्वायर, चलेगा. ठीक है, ओके, इनकॉर्पोरेट भी चलेगा, सब्ज्यूम भी चलेगा. ठीक है, इवन मच मोर सेंट्रल आइडिया ऑफ स्पीशीज वॉज लिटिल मोर देन अ थियोरेटिकल कन्वीनियंस. हो सकता है, सही बात है. कॉन्कोक्शन नहीं चलेगा और वैलिडेशन नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा, मीनिंग समझते हैं, वहां से पता चलेगा. डार्विन की मेथड ये रिक्वायर नहीं करती है कि ये जो आइडिया ऑफ रेस एज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल कैटेगरी, उसको कोई कंसेप्चुअल कैटेगरी वो मानता नहीं है. इवन द मच मोर सेंट्रल आइडिया ऑफ स्पीशीज वॉज लिटिल मोर देन अ थियोरेटिकल कन्वीनियंस. ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया ऑफ स्पीशीज था इट वॉज मोर देन अ थियोरेटिकल कन्वीनियंस, मतलब जो थ्योरी के मुताबिक जो कन्वीनियंट चीज है, ठीक है, वैसा नहीं है. ठीक है, इट इज समथिंग मोर देन दैट. ठीक है, कॉन्कॉक्शन इज अ मिक्स ऑफ समथिंग एंड वैलिडेशन, थियोरेटिकल वैलिडेशन की यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है. सो आंसर क्या हो जाना चाहिए उसका, फर्स्ट, रिक्वायर कन्वीनियंस. सेकेंड देखते हैं, बॉर्न ब्लैंक, चिल्ड्रन विल फॉलो देयर नेचुरल इंक्लिनेशन. ठीक है, सो दे आर बॉर्न इनोसेंट बोल सकते हैं, यस. ठीक है, बट दे आर फॉलोइंग नेचुरल इंक्लिनेशन टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, सो दैट मीन्स दे आर बॉर्न क्यूरियस. That's a better word. ठीक है, with a blank that belies the random appearance of their play. ठीक है, so with a purposefulness that belies random appearance of their play हो सकता है ना. caution और casualness चलेगा नहीं, because वो भले randomly खेलते हैं पर उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है. that means there is a purposefulness is involved in it. therefore आंसर क्या हो जाना चाहिए, सेकेंड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी कम टू रूट पार्ट. रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दोज रूट्स. सो दिस इज लैटिन रूट टू स्पीक. ओके, सो इसमें क्या क्या अवेलेबल है आपके पास, कोलोक्यूअल. Colloquial, that means colloquial language used in ordinary or in a familiar conversation, which is not a formal language. ध्यान रखना, this is everyday conversational language. For example, हमारे एंशियंट इंडिया में लोग संस्कृत बोलते थे, that was a formal language, while प्राकृत was a colloquial language. है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म वॉज मेजरली स्प्रेडेड बिकॉज दे वर प्रेजेंटेड इन अ प्राकृत लैंग्वेज. और जो वेदास थे दे वर रिटन इन संस्कृत और इसलिए वो दूर तक फैल नहीं पाए. इलोक्यूएंट होना, आर्टिकुलेट होना, एक्सप्रेसिव होना, फ्लुएंट होना, परsuasive होना, सो दैट इज कॉल्ड इलोक्यूएंट. इंटरलोक्यूटर बहुत काम का वर्ड है. अ पर्सन हु टेक्स पार्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी इन अ पर्टिकुलर टॉक और अ नेगोशिएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरलोक्यूटर. इंटरलोक्यूटर आर द मिडल मैन for discussion, debate, negotiations. And colloquy is a conversational exchange or a dialogue or a conference. जैसे colloquial word came from this colloquy. ठीक है, एक और connected word है उसका parley, powwow. These are the words. And soliloquy. Soli is a single, loqua is a बोलना. That means someone who's speaking on his own. There are no people who are listening to him, but he's speaking on his own. That is called soliloquy. Locution is a person's style of speech
while circumlocution is घुमा फिरा कर बोलना. Circum, circle, ठीक है, और गोल गोल घूम घूम के बोलना, that's called circumlocution. This is also known as periphrasis or pleonasm. This is the similar word to this. Great. Chaliye. So I think this 5 exercise with session number 8 will give you a lot of support for your, you can say, vocab part. Make sure that you take this PDF from protalentdigital.com. protalentdigital.com के ऊपर आपको ये PDF मिल रही है और उस PDF से आप ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं. Okay, chali, great. I hope you like this video. If you like this video, please put a like button, share it with large number of people, okay, and tell to your friends that all the CAT content is available here at free of cost. Okay, thank you very much and all the best.